Good morning, students. Now, the name of unit is ray optics. In ray optics, we have already studied reflection of light, refraction of light, dispersion of light. After that, today we are starting here optical instrument. So, optical instrument are the device which will operate with the help of light. ऐसे उपकरण जो प्रकाश से ही क्रियाशील होते हैं या लाइट के द्वारा ही ऑपरेट होते हैं, ऐसे डिवाइसेस को हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नाम है ऑप्टिकल, मींस ऑप्टिक्स से मिलके बने हैं, ठीक है। अब एक बात तो ये हो गई कि ये ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, मतलब दैट विल ऑपरेटेड थ्रू लाइट। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स और द डिवाइसेस व्हिच विल ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ लाइट। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके बिना तुम अधूरे हो, मैं अधूरा हूं, हमारी आंखें। अगर हमारी आंखें नहीं होती तो मैं आपको नहीं देख पाता और आप मुझको नहीं देख पाते। We are able to see each other, that is only because of Parihar here. So आँख, eye is the optical instrument. आप जब फोटो खींचते हैं, कैमरा is also the optical instrument. Now in physics, in bio and in other devices, in other subjects, we use so many optical instruments like microscope, like telescope, etc. The device by which we are able to see very tiny objects clearly or very far objects clearly, such type of devices, instrument is so called as optical instrument. Now these optical instrument divided into two categories. First one is real image forming optical instrument, and the another one is virtual image forming ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो किसी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को रियल इमेज फॉर्मिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल योर आई एंड कैमरा आर द रियल इमेज फॉर्मिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहले ये भी हमारे सिलेबस में होती थी, अब नहीं है। बायो वालों ने पढ़ा होगा, रियल कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है इसमें, मतलब अंदर ही होता है एक कॉन्वेक्स लेंस, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। रेटिना, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, स्मॉल ओपनिंग इज सो कॉल्ड एज प्यूपिल, एक्सेट्रा थिंग्स प्रेजेंट इन ह्यूमन आई। एंड योर इमेज, if you have a healthy eye, then your image will be formed at retina. Before retina or after retina, if image will be focused, then your eye will suffering from disease, that is short sightedness or long sightedness. We will discuss now after some time. Now the device by which the virtual image of an object will be formed. कोई ऑब्जेक्ट छोटा है तो बड़ा होगा, कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो पास नजर आएगा। ऐसी इंस्ट्रूमेंट को हम वर्चुअल इमेज फॉर्मिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सरल सी बात है, बड़ी इजी सी बात है। अब वर्चुअल इमेज ही बन रही है, छोटी बड़ी हो रही है, कीड़े मकोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ऐसे जो डिवाइसेस होंगी, फॉर एग्जांपल सिंपल माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जांपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जांपल टेलीस्कोप। अब ये टेलीस्कोप के भी दो प्रकार होते हैं बेसिकली। एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जिससे हम धरती पर दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं, और दूसरा होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल, आसमान में दूर स्थित वस्तुओं को क्लियर रूप से देख पाते हैं। The telescope by which we are able to see very far objects clearly is so called as telescope. That is also divided into three categories. Basically, two categories are there. That is astronomical telescope, by which we are able to see the sky, planets, stars, etc. clearly. That is astronomical telescope. And the telescope by which we are able to see very
far objects clearly on the surface of the earth, that is terrestrial telescope. That one is the astronomical telescope. So these are the optical instrument we will study here. So first we will discuss about eye. If you are already, I have discussed you, simple thing is that if you have a healthy eye, then if we are discussing human eye, then human eye is the real image forming optical instrument. हम विचार करते हैं कि दिस इज द लेंस and that one is the retina. We avoid all the internal things. Only we will take here eye lens and retina. If you have an healthy eye, then your image will be focused at retina. अगर आपका स्वस्थ नेत्र है तो आपका जो इमेज फोकस्ड होगा वो रेटिना पर होगा, और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो रेटिना के पहले हो जाएगा या रेटिना के बाद में हो जाएगा। ये पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब मैंने देख लिए 7 नंबर के क्या आ रहे हैं आपके, हाँ 7 से ज्यादा नंबर की कितने दिए पूरे रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। इसलिए हर एक चीज, छोटी मोटी चीज को आपको पढ़ना पड़ेगी। डेरिवेशंस को भले ही आप ज्यादा देखना पड़ेगी, लेकिन ज्यादा ना देखें तो भी चलेगा, लेकिन डेरिवेशंस फिर भी देखना पड़ेगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल तभी निकलेंगे। अब ऐसी स्थिति में जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं तो आप प्लीज छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से करिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट में दिए हो। वो आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपको फॉर्मूला आता होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ये इमेज रेटिना पर न बने और रेटिना के पहले बने, सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल द इमेज विल बी फोकस्ड बिफोर रेटिना। तो जब इमेज अगर रेटिना के पहले बनेगी तो पास की वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी, क्लियर, और दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स ऑफ विजन को आप क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। और इसे दूर करने के लिए आपको ऐसी लेंस का उपयोग करेंगे जो इमेजेस को, जो रेज ऑफ लाइट को हेलो फैला दे कि इकट्ठा कर दे, रवीना उसे ही नहीं है। अगर रे ऑफ लाइट पहले इकट्ठी हो जाएंगी तो व्हाट डू यू वांट, रेज ऑफ लाइट विल डाइवर्ज और कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब और पहले कन्वर्ज करना है तुम्हें, सी पगला रहे हो, यस डाइवर्ज, यू वांट टू डाइवर्ज द रेज, फैलाना चाहते हैं आप, और फैलाने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, कॉन्केव लेंस, बिकॉज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड। बेटा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं है उनको तो रिवीजन करनी पड़ेगी पढ़ने के बाद, मुश्किल हालत पर पढ़ने वाली है। तो डाइवर्जिंग लेंस का उपयोग करेंगे टू रिमूव दिस डिफेक्ट्स ऑफ विजन, वी विल यूज डाइवर्जिंग लेंस जो फैलाने का काम करता है, मतलब वी विल यूज कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस का ध्यान करो, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, यहाँ फोकस होती है तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव एंड पावर विल आल्सो नेगेटिव, तो चश्मे का नंबर नेगेटिव में लगता है। डायोप्टर, आपके चश्मे का नंबर नेगेटिव में होता है अगर दूर की चीजें आपको साफ नहीं दिखाई देती, पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं। इसी को शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया कहते हैं। क्लियर, यस और नो। अब दूसरा डिमेरिट्स या दूसरा डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसमें दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं, पास की चीजें आपको साफ नहीं दिखाई देती, ऐसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन को क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। दिस इज मायोपिया, व्हिच पिया, शॉर्ट साइटेडनेस, यस योर पिया। Now this is hypermetropia, metrospia. Now in this defects of vision, you are able to see the far objects clearly, and you are not able to see the nearby objects clearly. You have to see the far objects clearly. आपको दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी, पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी। सिंपल सी बात है। तो दूर की चीजें साफ दिखाई दे रही हैं और पास की चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही, मतलब आपको एक ऐसा लेंस यूज करना है जो रेज ऑफ लाइट को पहले ही क्या कर दी,
कन्वर्ट, तो फोकल लेंथ उसकी कैसी होगी, पॉजिटिव, और पावर भी कैसी होगी, तो आपका चश्मे का नंबर प्लस में होता है, जबकि पास की चीजें आपको साफ नहीं दिखती और दूर की चीजें आपको साफ नजर आती हैं। इसको लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। धीरे धीरे आपका बुढ़ापा आता है ना, तो ना तो आपको पास की चीजें साफ दिखाई देती, ना आपको दूर की चीजें साफ दिखाई देती। ऐसी स्थिति में यू आर नॉट एबल टू सी द नियर बाय, और व्हाई, बिकॉज यू आर समंजन क्षमता ऑफ लेंथ, accommodation of power of lens will becomes decreases due to your age increases। जैसे जैसे आपकी एज में वृद्धि होती है, नेत्र की समंजन क्षमता कम होने लगती है। एक्कोमोडेशन मतलब एडजस्ट करने की क्षमता। तो ऐसी स्थिति में पास और दूर दोनों की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। ऐसी पिया को कहते हैं प्रेसबायोपिया, isn't it? इसमें ना पास साफ दिखती और ना दूर की चीजें साफ दिखती। ऐसी लेंस का उपयोग करते हो जो कैसा होता है, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, isn't it? तो फिर ऐसा दोष भी दूर हो जाता है। कभी कभार हम इधर देखते हैं, इधर नजर आता है, और परिहार कैसे हैं? और रश्मि तुम ठीक हो, तुम, हाँ, तो ये जो होता है उसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं? इफ यू आर एबल टू सी, if you are not able to see the horizontal and vertical line clearly, then you are suffering from astigmatism. And to remove this defects of vision, we will use cylindrical lens. हम इस टाइप्स के डिफेक्ट्स ऑफ विजन को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो गए इन आई। कैमरा भी रियल इमेज फॉर्मिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एक आंख की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। आंख में जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। यहाँ पर आपने अंदर कोई लेंस नहीं लगाया, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस की क्या विशेषता है भाई? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, isn't it? Yes or no? तो रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मतलब किसी भी व्यक्ति को तत्कालिक आप देखेंगे तो वो रेटिना पर कैसा नजर आना चाहिए? उल्टा। लेकिन आपको कैसा नजर आता है? तो यहाँ पर क्या होता है, रेटिना से एक नर्व कनेक्टेड होती है। कहाँ? मस्तिष्क में, जो सेकंड भी नहीं लेती, जिनको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। वो जो इमेज रेटिना पर इन्वर्टेड बन रही है वो विद इन अ सेकंड कैसी हो जाती है? मस्तिष्क में जाके इरेक्ट हो जाती है और आपको कोई भी वस्तु सीधी दिखने लगती है। वही काम कैमरे में होता है। जब अपन रील पर, अब तो मॉडर्न कैमरे आ गए, सब डिजिटल काम है, लेकिन पहले रील होती थी ब्लैक कलर की, नेगेटिव बनता था, फिर उससे फोटो तैयार होता था, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती थी और दैट विल बी इरेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ फोटो, isn't it? So that is the camera. Camera is also real image forming optical instrument. वहाँ भी convex lens का उपयोग होता है।